The biggest magic that is happening out there in the field of AI is generative AI. And in this video, let's see how this magic is happening. Hey everyone, my name is Shumankit. There's a real data science channel, and this channel we talk about more generalistic stuff toward data science. And in this particular video, we'll talk about generative AI. So if people don't know, generative AI is a new field of AI, and most of our new technologies or tools that has shocked humans, such as ChatGPT or Gemini or all other LLM models, they are based on generative AI. So in this video, let's see what generative AI is. If you're not from a technical background, if you don't have idea about machine learning, any topic of data science, still this video will be, will cover you as an audience. So wait till the end of the video and you'll understand how this magic of generative AI is happening. Hey everyone, so let's dive directly into the video. और जैसा कि मैंने बोला, हम इस वीडियो में काफ़ी स्क्रैच से इस चीज़ को देखेंगे, जनरेटिव एआई चीज़ को। तो अगर आप कंप्लीटली नॉन टेक्निकल फील्ड्स हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यार ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, राइट। जेन एआई एक ऐसा टूल आया है जो सारे फील्ड्स में, सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका इम्पैक्ट हो रहा है, हर जगह इसका यूज़ हो रहा है। सारे बिजनेस चाहते हैं कि वो अपने टूल्स में, अपने वेबसाइट्स में, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जनरेटिव एआई के थ्रू सॉल्व करें। तो इसको जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सीधा वीडियो में चलते हैं। तो व्हाट ऑल थिंग्स वील कवर इन दिस वीडियो? वील कवर व्हाट इज़ जनरेटिव एआई, हाउ आर we finding the next word, right? We'll get into details of it. How is all this magic that is happening is possible? We'll see some common jargon terms ki what they are, like OpenAI, LLM, like होते क्या है ये चीज़, इसके बारे में देखेंगे। एंड देन वेयर टू स्टार्ट, राइट, कि अगर आप एज अ बिगनर हैं, आप इस चीज़ में आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप कहाँ से इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन द बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, कि अगर आप किसी डेटा रोल में आज के दिन बैठ रहे हैं तो आपको बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी जनरेटिव एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको कम से कम इतना आता हो। तो चलते हैं डायरेक्टली एक एक करके पॉइंट उठाते हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज जनरेटिव एआई। लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म जनरेटिव एआई। सो बेसिकली वी आर जनरेटिंग द कंटेंट, राइट। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, हाउ वी यूज ChatGPT, कि यू हैव राइट समथिंग, यू गिव सम इनपुट, गिव्स एन आउटपुट, यू आर जनरेटिंग कंटेंट. Now, let's take an example of generating content, okay? So, if I write something on ChatGPT in incomplete sentence, for example, the chocolate is dash, okay? So, it will complete the sentence for me, okay? And if I ask you, okay, what should be the next word here, then you will give, okay, there could be many words possible. But let's say I give you two options. Okay, which could be the next word here? One word is when and other one is dark. Now you would say, hey Shubhankit, if I put when there in that particular sentence, तो sentence का कोई meaning ही नहीं निकलेगा. The chocolate is when. I mean, it's an incomplete sentence. That sentence does not make sense. Okay, but if I put dark there, the chocolate is dark, right? That makes sense. Like, it's sentence. It can be a right or wrong sentence, but at least it's a correct sentence. So how I'm able to judge, guys, how I'm able to judge that whether this sentence is correct or whether this sentence is not? I am able to do that on the basis of experience. I have been trained in English language for last 20-25 years of my life. Okay, I'm hearing English language, I am seeing people speak English language, I am writing English language, I've studied English language. So I know these things by experience, okay, which sentence is correct, which sentence is not. So I know, okay, if I put when there, that will be a wrong sentence. So if I somehow can transfer all this learning that I have had with English language to a machine learning model, right, then this thing is possible. Right? अगर मैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को किसी तरीके से सारा एक्सपीरियंस दे दूँ कि एक सेंटेंस के बाद क्या आएगा, वो सारा एक्सपीरियंस दे दूँ, और ये सेंटेंस भी आई थिंक द चॉकलेट इज़ डार्क एंड द चॉकलेट इज़ स्वीट. Now compare these two sentences, guys. Chocolate is dark and chocolate is sweet. If I just compare these two sentences, which of the sentence you think would be the first thought that have come in your mind? सबसे पहले आपने क्या सोचा होता है इसमें से? If I ask you A और B, पहले A सेंटेंस आपके दिमाग में आया होता है, B दिमाग में आया होता है? B आपके दिमाग में पहले आया होता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन सेंटेंस है.
अब मोस्ट कॉमन सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? मोस्ट कॉमन सेंटेंस का मतलब हुआ कि ये सेंटेंस ज़्यादा अकर किया है, राइट? ये सेंटेंस आपने ज़्यादा सुना है, इस सेंटेंस के इवेंट ज़्यादा हुए हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, प्रोबेबिलिटीज़ को इवेंट से कंसिडर करें आप तो बेसिकली हुआ क्या कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया कि हाँ चॉकलेट इज़ डार्क और चॉकलेट इज़ वेन में, तो चॉकलेट इज़ डार्क की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। अब जब मैं दो सेंटेंस जिन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक सी है, चॉकलेट इज़ डार्क एंड चॉकलेट इज़ स्वीट, ये दोनों जब मुझे एक मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहे हैं, अब मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, ये सब मैं ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू मॉडल, ओके। अब मैं इसमें क्या देख रहा हूँ कि यार अगर चॉकलेट इज़ डार्क और चॉकलेट इज़ स्वीट, ये दो सेंटेंसेस है मेरे पास, तो अब इनके कंपैरिजन में चॉकलेट इज़ स्वीट ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक सेंटेंस है, यानी स्वीट ज़्यादा कॉमन वर्ड है जो नेक्स्ट अकर कर सकता है, गिवन द कंटेक्स्ट इज चॉकलेट इज़, द चॉकलेट इज़, इस कंटेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट वर्ड अगर कर सकता है उसमें स्वीट होने की, स्वीट वर्ड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू अ वर्ड डार्क, ओके। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो भी मैंने ये सेंटेंस के मुझे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने कहीं चॉकलेट देखी होगी, मैंने इस सेंटेंस को कहीं यूज़ किया होगा, तो उस केस में मैंने द चॉकलेट इज़ स्वीट को ज़्यादा यूज़ किया है या फिर इस वर्ड से मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ओके। इसीलिए नेक्स्ट वर्ड वुड बी स्वीट, ओके। सो बेसिकली जब मुझे एक सेंटेंस का नेक्स्ट वर्ड बनाना होता है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? सेंटेंस का एक कंटेक्स्ट यूज़ करता हूँ, जो कि इस केस में हमारा था द चॉकलेट इज़, ये मेरा कंटेक्स्ट सेट हो गया। और फिर इस कंटेक्स्ट के बेसिस पे मैं अपनी मेमोरी के जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ के, जो मेरी जितनी लर्निंग है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की, उस सारे के एक्सपीरियंस के बेसिस पे टॉप वर्ड मेरे दिमाग में डिसाइड होते हैं कि यार क्या क्या वर्ड आ सकता है, और उसमें से जो नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल वर्ड है, जिस वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो वर्ड यहाँ पर आ जाता है। यू नो कुछ भी हो सकता है अलग अलग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। नाउ अब जब मैं इसके बाद का एक बार सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द चॉकलेट इज स्वीट, नाउ व्हाट? नाउ इट्स अप टू मी कि अब मैं अपना कंटेक्स्ट कितना रखना चाहता हूँ। तो अगर मुझे एक और नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है, तो अगर मैं इतना ही रखता हूँ चॉकलेट इज़ स्वीट और चॉकलेट इज़ स्वीट, तो ये द वाला वर्ड अब लेना है उसको कंटेक्स्ट में, नहीं लेना है ये मेरे ऊपर आ गया, राइट। बट आई होप यू अंडरस्टूड, राइट, कि कैसे आपका एक कंटेक्स्ट डिसाइड हो रहा है और नेक्स्ट वर्ड जो कि मोस्ट प्रोबेबल वर्ड होगा वो डिसाइड हो रहा है। तो अब जीपीटी के मॉडल में ये कैसे हो रहा है, एक एलएलएम के मॉडल में ये कैसे हो रहा है, चैट जीपीटी के टर्म्स में ये कैसे हो रहा है? तो देखो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, देखो एक्सपीरियंस को रिप्लेस किया जा सकता है डेटा से, ओके। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो बेसिकली मेरा डेटा है जो मेरे दिमाग में स्टोर्ड है। हम इस सारे एक्सपीरियंस को डेटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, यू नो, दे बेसिकली यूज़ दिस होल अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ अप्लीकेबल ऑन द इंटरनेट। जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल होगा उतना स्ट्रांग वो मॉडल होगा, राइट। और उसके बेसिस पे वो लर्न करेगा उस चीज़ को, सिंपल मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन, यू नो, यू कैन से क्योंकि आई एम गिविंग इट अ फॉर्मूला, राइट। इन मशीन लर्निंग वी बेसिकली प्रेडिक्ट अ फॉर्मूला। तो वो सारे डेटा के बेसिस पे, इंटरनेट पर सारा जो डेटा है, इफ़ आई जस्ट राइट दिस थिंग ऑन गूगल, जो चॉकलेट इज़, राइट, तो जो नेक्स्ट वर्ड जनरेट करने के लिए मेरा जो चैट जीपीटी का मॉडल है, ये सारा डेटा सर्च करेगा अक्रॉस ऑल द इंटरनेट, सारे आर्टिकल्स जहाँ जहाँ इस चीज़ का मेंशन हुआ होगा, वहाँ से कोलैबोरेट करके इट विल गिव मी अ रिजल्ट कि ओके द मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक नेक्स्ट वर्ड इज़ स्वीट, ओके, और वट एवर द वर्ड इज़ गिवन द कंटेक्स्ट, okay. So it's basically a machine learning model with a lot of data and a lot of computation. Now how much computation is there, you know, थोड़ा समझते हैं। तो अगर आप सिंपल एक इफ एल्स मॉडल की बात करते हो, सिंपल एक इफ एल्स मॉडल की बात करो, यानी एक मॉडल है नहीं, लर्निंग हो ही नहीं रही है वहाँ पर, आप एक रूल बेस्ड मॉडल की बात कर रहे हो, एक कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो येस, अदरवाइज नो, राइट। तो इस केस में जो पैरामीटर्स हैं, यानी जो लर्निंग हो रही है, वो ज़ीरो है, ओके। अगर आप एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करते हो, जहाँ पे आपकी इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं वो दो होते हैं। आपको केवल दो पैरामीटर्स सीखने होते हैं, m और c। उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो प्रेडिक्शन के लिए। तो जो पैरामीटर्स हैं वो दो हो गए। सिमिलरली अगर जैसे आप एक इमेज क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट की बात करते हो,
तो यानी आपके पास कैट्स एंड डॉग की लेट्स से ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हैं, तो 64x64 की इमेजेस हैं पिक्सल में, और उस केस में 64x64 आई थिंक समवॉट अराउंड 4000, सो अराउंड 5000 पैरामीटर्स आप लर्न करोगे एक सिंपल इमेज क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट में। यानी इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल जो एक कैट और डॉग की इमेज को क्लासीफाई कर सके कि ये कैट है और ये डॉग है, एक ब्लैक एंड वाइट इमेजेस में। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी लर्निंग के लिए मुझे 5000 पैरामीटर लेंगे, 5000 पैरामीटर्स आई विल रिक्वायर। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टूड राइट कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। जब हम किसी GPT मॉडल की बात कर रहे हैं, लेट्स से GPT-4 मॉडल की बात कर रहे हैं, तो उसमें 170 बिलियन पैरामीटर्स होते हैं। ओके, सो अब आप समझ सकते हो कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने वहाँ इंट्रोड्यूस कर दी। एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में 2 पैरामीटर्स होते हैं। अब जब आप एक GPT मॉडल यूज़ कर रहे हो, यानी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, बेसिकली द फर्स्ट मॉडल दैट यू लर्न इन मशीन लर्निंग, दैट हैज़ ओनली 2 पैरामीटर्स. When you are doing a GPT model, it has over 170 billion parameters. So that level of complexity is needed to basically find the most probabilistic next word for a sentence. So basically, how do you find next word? We have seen what is generative AI. How is this possible? We have also seen. Now, let's see one more thing. Okay, what are these terms that are jargons that are roaming around? So the most common jargon you would have heard is OpenAI. Okay. सो OpenAI है क्या? OpenAI बेसिकली कंपनी है. OpenAI एक बेसिकली कंपनी है जिसने इस चीज़ को रेवोल्यूशनाइज़ किया है. बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ पे वर्क कर रही थी LLM मॉडल्स पे, बट OpenAI वाज द फर्स्ट कंपनी टू मेक इट पब्लिक एंड टू यूज़ इट एट दैट पर्टिकुलर एक्सटेंट, जो बेसिकली GPT के ओनर काइंड ऑफ है. उनके बाद ही हमने सारे मॉडल देखे हैं. अराउंड 2021 में OpenAI केम इन फ्रंट एंड इंट्रोड्यूस ऑल दिस थिंग्स, एंड अब तो लाइक एक्सटेंट तक पहुंच चुके हैं. GPT-2, GPT 3.5, GPT Turbo, now we are using GPT-4, GPT-4o, right? So, and along with that, we have parallel competitors who have equally worked, but OpenAI was the first one to come in limelight, you would say. Now, other thing is, what is LLM? LLM is nothing, it's just a class of model. So, OpenAI का जो मॉडल है GPT-4, दैट इज़ अ मॉडल नेम, वो इस ट्रेंड मॉडल का नाम है. जैसे अगर आप एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल इनिशियलाइज करोगे, तो लीनियर रिग्रेशन इज ऑल्सो क्लास ऑफ एल्गोरिथम, उसकी कैटेगरी है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ये. बट आप मॉडल का एक नाम रखोगे, जब आप मॉडल को ट्रेन कर लोगे तो आप उस वेरिएबल को किसी नाम से स्टोर करोगे, राइट? सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड GPT-4. And LLM is a class of model. This is a large language model. Why large language model? Because they have all this data that is available on the internet. Large data, large language model. And other terms that you should know, you would have heard about LangChain. कि अब LangChain क्या है? So just like machine learning, जैसे analytics को सीखने के लिए Python में अगर आपको analytics करना है तो आपके पास analytical libraries होती हैं. Pandas, NumPy, Seaborn, right? You must have heard of it. सिमिलरली अगर आप मशीन लर्निंग करते हो तो आपके पास लाइब्रेरीज़ होती हैं आपकी हेल्प के लिए, जो कि scikit-learn हो गया, XGBoost हो गया, ये लाइब्रेरीज़ हो गई. देन इफ़ यू डू डीप लर्निंग तो आपके पास डीप लर्निंग लाइब्रेरीज़ होती हैं, जैसे TensorFlow, Keras, राइट, PyTorch, ये आपको हेल्प करती है डीप लर्निंग में. सिमिलरली व्हेन यू वांट टू प्ले अराउंड LLM मॉडल्स, आप डिफरेंट LLM मॉडल से कनेक्ट करना चाहते हो, आप एक प्रॉपर कोड बिल्ड करना चाहते हो APIs के थ्रू, सब कुछ करने के लिए अगर आपको एक कोड रिपोजिटरी बना के दी गई है एक लाइब्रेरी में, दैट इज़ बीइंग इंक्लूडेड इन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी, दैट इज़ LangChain, right? And LangChain works really well with OpenAI. I've used LangChain a lot, so I can say that. And these, I think, are the most common jargons that are out there, and that makes people confused. Here, GPT, and what is the difference between GPT and LLM? The GPT is a model name. LLM is a class of model, right? Large language models. So, I hope ये doubts अब clear होंगे. And next thing, where to start? So, अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो या फिर आप अभी तक डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस कर रहे थे, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि आई वांट टू लर्न अबाउट डीप लर्निंग, आई वांट टू लर्न अबाउट जनरेटिव एआई एंड स्टफ. सो द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विथ इज़ फर्स्ट सी द एप्लीकेशंस. इसमें थोड़ा डिफरेंट है गाइस. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी स्टडी मशीन लर्निंग, तो आपसे बोला जाता है कि नहीं आप पहले मैथ्स पढ़ो, ये सारी चीज़ें पढ़ो, देन आप उसमें डाइव करो. When you learn generative AI, the ideal way to learn generative AI is to first see the application of it. आप सिंपल OpenAI से एक API बनाओ, ओके, वहाँ से एक API की लो, उससे कनेक्ट करके बेसिक एप्लीकेशंस जो होते हैं, मेरा एक अपकमिंग वीडियो आने वाला है सेम चीज़ पे, बेसिक एप्लीकेशंस पे, तो उन बेसिक एप्लीकेशंस को ट्राई करो,
राइट, जहाँ आप सिंपल बस ओपन एआई के मॉडल को हिट करो और वेरिएशन देखो, उसके पैरामीटर्स चेंज करके देखो। इससे क्या होगा कि आपके सीवी में ये चीज़ें आ जाएंगी। दैट मीन्स यू विल गेट कंफर्टेबल अराउंड दिस थिंग कोड वाइज। ओके, वंस यू आर डन विद दैट थिंग देन यू हैव थिंग्स टू लर्न। आपको ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको एनएलपी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको डीप लर्निंग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको जीएन अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें you can learn in a proper path. There are many resources for these. Just ping me on LinkedIn. I can direct you to some great resources regarding these things. We are also coming up with good projects regarding these things, so that will also be helpful for you. And yeah, this will give you a way to start, right? And to be honest, what I have seen working in the field of generative AI as of now, that nobody knows generative AI that much. सब लोग इस फील्ड को समझ ही रहे हैं कि इसके क्या क्या यूज़ केस हो सकते हैं, कैसे कैसे इन चीज़ों से चीज़ें बन सकती हैं। बहुत सारे इसमें डिफरेंट यूज़ केसेस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ केसेस हो जाते हैं जो कि बहुत सारे जॉब्स को रिप्लेस करने का आइडिया रखते हैं। ओके, लास्ट इज़ बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, कि अगर आप एक इंटरव्यू में बैठ रहे हो आज के टाइम पे, सो व्हाट इज़ बेयर मिनिमम थिंग दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। द बेयर मिनिमम थिंग दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज़ दैट यू शुड नो व्हाट जनरेटिव एआई इज़, यू शुड हैव वर्कड अराउंड LLM मॉडल्स, राइट। You should know what generative AI is and you should have worked around LLM models। कि आपने एटलीस्ट ओपन एआई का API कॉल किया हो अपने लोकल में कोड के थ्रू, राइट। आपने बस API हिट किया हो किसी रिक्वेस्ट से, दैट इज़ इनफ एज ऑफ नाउ। ओके, and that is the only thing that you need, the bare minimum thing, and you should understand what this thing is doing, okay, कि what is generative AI is doing। So and to be honest, code जो है उसका आप डॉक्यूमेंटेशन से हिट कर सकते हो, बट एक जो थ्योरी वाइज जितनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जार्गन्स क्लियर होने चाहिए, द ओवरऑल आइडिया जो क्लियर होना चाहिए, दैट वी हैव डिस्कस कि हाउ इट इज़ जनरेटिंग द नेक्स्ट वर्ड, द मोस्ट probabilistic word। that probability can come through many parameters। it could include the parameter कि आपने context के पास किया है, it include the parameter कि आपको कितनी randomness चाहिए, it include the parameter कि आपको आउटपुट कितना बड़ा चाहिए। इन सब को इंक्लूड करके एक प्रोबेबिलिटी बनती है, उसके अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबिलिटी वर्ड आपको वहाँ शो हो जाता है एज अ नेक्स्ट वर्ड। देन अगेन कंटेक्स्ट चेंज इट विल प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, देन अगेन द कंटेक्स्ट चेंज विल प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, सेम थिंग विल गो ऑन। सो या, दैट इज़ ऑल आई हैड फॉर योर जनरेटिव AI 101 सेशन। 101 बिकॉज दिस वॉज योर फर्स्ट क्लास, जस्ट लाइक हाउ वी डू इन कॉलेज, राइट। कि पहला क्लास में आपको बस बताते हैं कि यार पढ़ने क्या वाले हो। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है जनरेटिव AI बहुत। इवन अगर आप उसको इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप कुछ रियली कूल टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो उस चीज़ों से। इंडस्ट्री में तो यार बहुत यूज़ हो ही रहा है। Yeah, that was all I had for you in this video. My name is Shubhankit. I work at Worldwide Technology as a machine learning engineer. I'm also a creator on YouTube, LinkedIn, Instagram. You can follow me and find me everywhere. My name is quite unique, so it will be easy for you to find me. And I'll see you again in the next video.